that they use a huge bumper productions of potatoes, and many a times the prices of the produce thing is so low, they even do not harvest. The cost of harvesting of potato becomes much larger than the product they usually get after selling. Why it is so? And it is happening, and years after years, actually decades after decades. And we need to, actually, in the beginning there may be certain problems, and now we have come up, actually, when we say that even a rickshaw puller, even a maid, they are having digital devices in their hand. Through those digital devices, they can connect themselves with the state and national market, even with the international market. So if there are certain systems, the integrating even the local with the national, state and international market, then whatever you are producing, you will not think that next door neighbor or the local market don't have the demand of it, therefore we should not go for it. So that agricultural sector is needed to be actually made very, very dynamic. The production, whatever it is happening, that some farm laws has come, those are very effective, but we know that stalemate has come because of the, just for the purpose of opposition, it is being opposed. Whatever the problems are, that those if are rectified, then we need to make the system of the market, we need to take the idea of the diversifications of the producers, whatever is being done in the agricultural system, then we can get the whoever are coming back up. If we know that push-pull factor in migration, we talk about why people are going from UP, BR, even from nowadays after 80s from West Bengal. West Bengal was a very rich state. It had almost 30% of the India's GDP in 1960s, and if we consider now, it is having 2-3% to the GDP of whatever we had in 1960s. And now it has become a state, like I am not telling, actually it is giving them supply to the rickshaw puller, supplies to the maid servant, supplies to the domestic, though it is giving a minimum that is skilled laborers. So all the states, actually, we told that those who are the destinations, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, Gujarat, they are very efficient. They are also migrating from one place to another place, and very skilled labor they are giving. But they are receiving very, very underdeveloped, unskilled laborers. And from those areas, we need to see that pattern, and those things are to be made. And destination, whatever the problems they are creating in the source, that can be handled in a very, very. And we know that agricultural sector is a sector where huge guys unemployment is there, and that agricultural sector is not getting their wages, because those who are in economics, Professor Santosh Mehrotra is there, I am encroaching a little bit, that the wages is determined with the marginal productivity of the laborers engaged in that sector. But many a times it is seen that agricultural productivity of the marginal laborers is almost zero, and though there is an average positivity in the production, but productivity, but many a times that marginal, and they get with the average prices of the livelihood in that area. So if your livelihood is very, very poor, if you can manage with 2,000, 3,000, on that basis your wage rate is determined, and that we cannot expect. When you mix with the national and global order, then you find that the problem of inequality, all are coming. Unless you connect yourself with the global order, make the agricultural sector vibrant, it will be very, very difficult to check the problems. The returned migrants have gone, they have a huge skill, that government has given huge chances of MSME. And just for an example, I am telling that so many workers from West Bengal, from Hooghly, Howrah, then Chobis Pargana, from Midnapur, they usually go in different parts of Mumbai, Delhi, even Gujarat, and they usually do the works related to jewelry, ornamentations, and all these things. They have come back. They are very efficient labor. If MSME is giving something to them, they can be there itself, and if the market is linked, and they can also be actually those areas be hub for the global market. So now MSME has given a huge chance actually
to explore all the things, and the report has given very good to actually coverage of all the things. And I am afraid he's writing something, he will be telling restrict with the time. So before he hand over the cheat to me, but I have seen the report is really fabulous. It has touched upon all the important issues, but the intricacies and the complexities, it has not gone. Might be they have thought of that they need to restrict it within certain pages. Therefore, I told that we have a huge resources within the report, and from there, just attaching with the mind and emotions with the reports, if we give the prescriptions to the government, and honestly if the government takes it up, really we can have a very, very good country, and a country which can have a command over the globe. Thank you so much. धन्यवाद दीपेंद्र नाथ जी, आपके हार्टफेल्ट कमेंट्स हमारे रिपोर्ट के ऊपर जो आई है वो डेफिनेटली सराहनीय है, उसका उपयोग हम डेफिनेटली करेंगे, मगर टाइम कंस्ट्रेंट के कारण यहाँ एक्चुअली पैनल डिस्कशन के लिए रखना था, मगर अभी 1 बजने जा रहा है और हमारा टाइम ख़त्म होने जा रहा है। इसलिए मैं श्री एस.के. मेहरोत्रा जी को अनुरोध करता हूँ कि वो इस पैनल डिस्कशन का कंक्लूजन करें। श्री एस.के. मेहरोत्रा जी। Yes, okay. That needs to be filtered. Yeah. The other one. धन्यवाद हरि जी, धन्यवाद प्रमोद जी, माननीय सुनील जी आम्बेकर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने साथियों को जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है उनको बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर रावल को, श्री प्रकाश जी को, संजय पासवान जी को, विनोद दिवाकर जी को, कि बहुत ही सुंदर रिपोर्ट, बहुत ही दूरदर्शी रिपोर्ट और देशव्यापी रिपोर्ट लिखने के लिए। मैं 10 मिनट ले लीजिए, 10-15 मिनट नहीं, मैं कोशिश करता हूँ 10 मिनट के अंदर। मैं अपने उद्बोधन को 2 भाग में बांटता हूँ। मैं शुरू में तो आपके रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशंस हैं उन पे थोड़ी सी चर्चा करता हूँ और फिर उनको थोड़ा सा इलैबोरेट करूँगा एक अर्थशास्त्री के तौर पे। तो आपको बताया गया कि मैं डेटा पे काफ़ी काम करता हूँ, तो सबसे पहली बात तो सवाल ये है कि क्या ये जो प्रवासी पुनर्पलायन करने वाले मजदूर थे उन पर कोई डेटा था या नहीं था उस समय जब ये पुनर्पलायन शुरू हुआ। तो एस्टिमेट्स ज़रूर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या संख्या थी कुल मिलाकर के देश में, मगर ऐसा नहीं था कि आप किसी को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये माइग्रेंट है और वो माइग्रेंट नहीं है। कि सच पूछिए तो एक्चुअली दिल्ली में आप देखिए तो आप भी माइग्रेंट हैं, मैं भी माइग्रेंट हूँ, हम सब माइग्रेंट हैं, बहुत से लोग माइग्रेंट हैं। तो माइग्रेशन के भी कई आयाम होते हैं, सीजनैलिटी होती है, सिक्लिकलिटी होती है, कुछ परमानेंट माइग्रेशन होता है। मोटी ये बात ये है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे किसी को, और क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे ये एक दिक्कत है। इस वजह से ये डेटा का मुद्दा उठा है। मगर ये ना सोचिए कि इस देश में उस समय मार्च 24 को माइग्रेशन पे बहुत काम नहीं हो चुका था, बहुत काम हो चुका था, जिसको मैं गिना सकता हूँ आपको, मगर मैं उसमें जाऊंगा नहीं। और उसके बाद भी पिछले 6 महीने में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि
कम से कम 5 रिपोर्टें सर्वेक्षण आधारित माइग्रेंट लेबर पे आई हैं, अलग अलग संस्थाओं की आई हैं। मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि उनकी चर्चा इस रिपोर्ट में नहीं की गई। मैं एक उनका कुछ का नाम ले लेता हूँ, मैं आप पूछिएगा तो मैं और बाद में और आपको बता सकता हूँ। एक अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की है, एक एक्शन एड की है, 3 रिपोर्ट स्वान की है, उसके अलावा 2-3 रिपोर्ट कम से कम और हैं। एक झारखंड की संस्था है झार कनेक्ट, उसकी है। सर्वेक्षण के आधार पे बनाई हुई रिपोर्टें। और अब सरकार जागरूक हो गई है इस डेटा को लेकर के, तो सरकार ने किया ये। मैं मॉस्पी का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो एक नेशनल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स की एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसका एक सदस्य हूँ मैं। तो उसमें एनएसएस के डेटा का डिज़ाइन जो होता है, एनएसएस के डेटा कलेक्शन का जो डिज़ाइन होता है, वो काम होता है, उनको हम एडवाइस करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि करीब 6 महीने पहले ये निश्चय ले लिया गया था, जिसको हमने अप्रूव किया है उस स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स पे, कि एक माइग्रेशन का मॉड्यूल अगले पीएलएफएस में, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में, जो 21-20 से शुरू हो रहा है, 1 जुलाई से शुरू होगा, 21 की और 22 में जाएगा, उसमें डेटा कलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि एक सवाल है, पहली चीज़ तो डेटा अब आएगा, मगर वो फिर भी एस्टिमेट होगा। मैं एस्टिमेट और आइडेंटिफाई करने वाले जो दो अलग अलग मुद्दे हैं, मैं उनको डिस्टिंक्टली डिस्कस कर रहा हूँ। मैं अभी भी एस्टिमेट पे बात कर रहा हूँ। फिर दूसरा एक सुझाव आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को इसमें कुछ करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक भाग है जिसको कहते हैं लेबर ब्यूरो, जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है और जो सर्वे करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए। और उसने एक कमेटी का चयन किया है और नियुक्ति करी है, जो उस एक नए माइग्रेशन पर, सिर्फ माइग्रेशन पर सर्वे का डिज़ाइन बनाने में इस समय कार्यरत है। तो उम्मीद है कि करीब 1-1.5 साल में इस मुद्दे पर डेटा काफ़ी बढ़ जाने वाला है। मगर ये मुद्दा, एस्टिमेट्स तो आपको मिल गए फिर भी, और कहाँ से कौन कहाँ जा रहा है, कॉरिडोर्स मिल गए। कॉरिडोर्स के बारे में तो हमें पहले से भी, अभी भी मालूम था, क्योंकि 2017 में एक वर्किंग ग्रुप, सरकार की बनाई हुई वर्किंग ग्रुप था ऑन माइग्रेशन, उसकी रिपोर्ट थी। उसमें ये बताया गया था कि हमारे देश के 56 ऐसे ज़िले हैं जहाँ से जो सोर्सेज हैं, और उनमें ये भी गिनाया गया था कि किन प्रदेशों में और किन ज़िलों में डेस्टिनेशन होता है उनका। तो वो कॉरिडोर्स भी हमको काफ़ी कुछ मालूम था, मगर अब ज़्यादा अच्छे ढंग से मालूम होगा। अब आते हैं मुद्दे पर आइडेंटिफिकेशन के, कि आप माइग्रेंट हैं, तो आप चाहते हैं, आपका सुझाव ये है कि इनका रजिस्ट्रेशन हो। अच्छा सुझाव है, होना चाहिए। सवाल ये है कि ये काम तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स लॉ 1979 में होना था। अरे ये लॉ तो 41 साल से हमारी लॉज में थी, तो क्यों नहीं हुआ? हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा ये सोचिए ना कि ये क्यों नहीं हो रहा था। अब आप ये सुझाव दे रहे कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके बारे में पहले ये समझना आवश्यक है कि वो क्यों नहीं हो रहा था। ये कहना कि हम एक नई लॉ बनाना चाहते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रियां डील करती हैं माइग्रेंट के इश्यूज को लेकर के, पॉइंट ये है लॉ है अभी लॉ, मगर वो लॉ अब सुपरसीड हो गई है। क्यों? क्योंकि जितनी भी लेबर लॉज थी, 35 केंद्र सरकार की 35 लेबर लॉज थी, वो सब सब्स्यूम हो गई 4 लेबर कोड्स में, जो अभी पास हुए हैं 19 और 20 के दौरान। तो ये इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स लॉ जो है वो सब्स्यूम हो गई है ऑश लॉ में, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ में
जो एक कोड अभी पार्लियामेंट ने पास किया हैगा। सोशल सिक्योरिटी कोड अभी हाल में पास हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि हम रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों चाहते हैं, किस लिए, क्या करिएगा आप उस रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बाद, डेटा का क्या करिएगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब उसके लिए इंतजाम था, नहीं था, मगर नहीं हो रहा था। तो क्यों नहीं हो रहा था? तो अब आप कहेंगे कि अच्छा हमारे पास अब तो आधार है तो हम तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी देश में बढ़ गई है। बात सही है, मगर मुझे ये बताइए वो रजिस्ट्रेशन होगा क्यों, कैसे होगा, कौन करेगा? क्या वो वर्कर जाकर के खुद रजिस्टर करेगा? वो इतना पढ़ा लिखा है कि वो जाएगा, उसके पास इतना समय है, वो जाकर के वहां पर अपना नाम लिखवाएगा? जरूरी नहीं है। इसके लिए एक आपको मशीनरी तैयार करनी होगी। क्यों तैयार करनी होगी? क्योंकि आपके इन ऑश का जो लॉ है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वाला लॉ, और जो सोशल सिक्योरिटी वाली लॉ है, उन दोनों लॉज के अंतर्गत रिक्वायरमेंट है कि वर्कर्स का, सारे असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है रजिस्ट्रेशन होना, क्योंकि अगर वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कायदे से होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, केवल देशव्यापी रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप वो लागू होगा किस पे? बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट पर भी। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में असंगठित क्षेत्र के लिए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है, उसके लिए सेस है, उसमें एक फंड इकट्ठा होता है जिसमें 40,000 करोड़ इस समय आज की तारीख में इकट्ठा है, मगर वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत से मुद्दे हैं। मगर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये साफ ढंग से ये कहिए अपनी रिपोर्ट में, और अगर आप कुछ किसी को सुझाव देने जा रहे हैं कि देखिए एक तरीका है इनको रजिस्टर करने का, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता। मैं गया हूँ, ऐसा नहीं कि इस विषय पे मैंने लिखा नहीं है, मैं अभी लिख रहा हूँ इस विषय पे, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला का जो है वो भारत सरकार को एक बड़ा लोन देने जा रहा है सोशल प्रोटेक्शन पे, सोशल सिक्योरिटी पे, और उन्होंने मुझसे कहा है, हमारी सरकार तो हमसे नहीं राय मांगती, मगर एशियन डेवलपमेंट बैंक मुझसे राय जरूर मांगती है कि आप बताइए कि ये सोशल सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को किस तरीके से देशव्यापी रूप से लागू की जा सकती है। क्योंकि देखिए सिर्फ एक लॉ पास कर देने से असंगठित क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाए, तो माइग्रेंट वर्कर को लगेगा कि अच्छा अगर मैं रजिस्टर करता हूं तो ये संभवतः मुझे, क्योंकि मैं तो असंगठित क्षेत्र में हूं, मुझे तो सामाजिक सुरक्षा मिलने का कोई अधिकार है ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं है। बीओसीडब्ल्यू को छोड़ करके, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाले को छोड़ करके, बीडी वर्कर्स को छोड़ करके, माइन एंड डोलोमाइट वर्कर्स को छोड़ करके मेरे को तो है नहीं। तो 91% हमारा मजदूर हमारे देश का ऐसा है जिसके पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है, तो उसको लगेगा कि मेरी जेब में कुछ आएगा, तो इसलिए मैं करूंगा, मैं करवाऊंगा, मैं डंके की चोट पे आपके मतलब सरकारी दफ्तर पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, चाहे आप पोर्टल पे करवाएं। तो जरूरी यह है कि उसको आप एक कम से कम ये आइडिया दें कि आपको इससे कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि वो 41 साल से देख रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे उसको एक्सप्लॉइट करता है कि नहीं। तो वो ये रियलिटी जो है, ये यथार्थ एकदम से तो बदलने नहीं वाला है। तो दूसरी बात मैं बस यही कहना चाहता था, दो बातें और मैं जल्दी से कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए हमारे देश में ये इस बात का अभी भी एहसास नहीं है कि ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, जो कोविड पैंडेमिक का इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी पे, जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट क्वार्टर में 24% हुआ, जो बल्कि
आंकड़े गलत बता रहे हैं, वो 24% से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें असंगठित क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। जो सेकंड क्वार्टर में 7.5% हुआ, और वो इस साल और इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगले साल भी इस उम्मीद में न रहिए कि हम उस प्रति व्यक्ति आय पे पहुंच जाएंगे जो 19-20 में थी। वो 22-23 में अगर पहुंच पाए तो हमको अपने को शाबाशी देनी चाहिए। अगर ये स्थिति है तो 3 साल के दौरान गरीबी बढ़ी है, गरीबी निश्चित रूप से बढ़ेगी, और इसका प्रमाण हमें वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी अभी दे ही चुकी है। और मैं आपको, अगर आपको और प्रमाण चाहिए तो मैं अभी आपको दे देता हूं, क्योंकि दिक्कत यह है कि इस पैंडेमिक से पहले लगभग 9 क्वार्टर से द इकोनॉमी हैड बीन स्लोइंग डाउन, इट हैड बीन स्लोइंग सिस्टमैटिकली, and the result of that was the following: that demand was collapsing, investment was collapsing, exports were not growing, and joblessness was already at a 45-year high. 45-year high already pre-pandemic. Now, can you imagine, in that situation you get a pandemic and a contraction of the economy for the first time in the history of the country. And because non-farm jobs were not growing and young people were entering the labor force at larger and larger numbers, you got unemployment increasing, and because unemployment was increasing, wage rates were also falling because there were too many people around. Wage rates were falling. I've demonstrated this work, this on the basis of NSS work. And yesterday, in preparation for coming to this meeting, I actually did an estimate based on NSS data of what happened to poverty. मैं तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन की बात कर रहा हूं। वो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन जो प्लानिंग कमीशन में, ठीक है, उसके बाद से तो जब से कार आई है तो कोई पॉवर्टी का डेटा आया नहीं है, मगर एनएसएस के डेटा हमको मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में बताते हैं। तो वो हमको क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 22% थी देश में 2012 में, वो 17-18 में 28% हो चुकी थी, और 18-19 में वो 32.8% हो गई। जिसका मतलब यह है कि पैंडेमिक से पहले यह स्थिति थी। और इसका मतलब यह भी है कि द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर rose from 277 million in 2012 to 344 million in 2017-18 to 436 million in 2018-19। इसमें बहुत सी संख्या माइग्रेंट वर्कर की भी है, लाजमी है, क्योंकि ये कैजुअल वर्कर है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर वर्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, और इनकी आमदनी पैंडेमिक के बाद और घटी है। और ज़रूरी अब ये है, और मैं इस बात को कह करके बात अपनी ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं वैसे ही 10 मिनट शायद 12 मिनट बोल चुका हूँ, कि बजट आ रहा है। आप लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हमारी सुनती न हो सरकार मगर आपकी शायद सुने। तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप ये सोचें कि जो मैं आपको अब सुझाव देने जा रहा हूँ बजट के लिए, वो माइग्रेंट वर्कर को के लिए तो मुफीद होंगे ही, मगर बाकी जनता के लिए भी मुफीद होंगे। और वो क्या हैं? वो ये हैं कि the first thing I think you really need to recognize is that the impact of the pandemic has been on our economy, has led to a contraction of our economy which is among the worst in G20 countries.
I won't go into the reasons for why this might have been the case. So please don't tell me, or don't let anyone tell you that, oh, the entire world is collapsing. The entire world's economy is collapsing. Yes and no. Because different economies are contracting at different rates and to different extents. And our contraction is among the worst among the G20 countries. I can explain the reasons for you. I won't go into those reasons because we don't have the time. I've written about this and I've spoken about this. And this obviously hurts me as an economist who understands that this is absolutely tragic, that a country which was which was the fastest growing large economy in the world till literally a year ago, or 2 years ago, because it had already been slowing, is now contracting at a rate which is worse than any other G20 country. इस समय डिमांड की ज़रूरत है, एग्रीगेट डिमांड की ज़रूरत है. जो फिस्कल पैकेज आया है, that was only in the आत्मनिर्भर भारत, which is only 2% of GDP. टोटल की बात कर रहा हूं. When I was part of government in the Planning Commission, the fiscal package alone that we put in place for an economy which had not contracted, which is only slowed down. We were already slowing down earlier, which had only slowed down. We put in place a fiscal package of 3.5% of GDP. Now the fiscal package in a crisis which is the worst in the history of our country is only 2% of GDP. This is a crisis not just caused by the lockdown and the supply chain shocks, but also a crisis of demand. As there was joblessness earlier, and joblessness has become worse now, and wages are falling. Which is the reason why the expectation of the World Bank is that in the world, South Asia will account for some 40 million additional new poor this year, on top of the numbers that I've already said, and next year even more, because we will not get back to 1920 GDP levels till 22-23. So it's absolutely critical that the government thinks of 3 things, and I will stop here. One, that instead of PM Kisan and registration that I began by talking about, registration of migrant workers, not just, and it's not registration of migrant workers only, because असंगठित क्षेत्र के जितने वर्कर है उन सबको रजिस्टर करना है. माइग्रेंट कोई को क्यों रजिस्टर करना है? क्या एग्रीकल्चर वर्कर नहीं है, या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वर्कर नहीं है, हैं? या अर्बन पुअर जो है, अर्बन पुअर भी तो है, वो चाहे गांव से ना आया हो तो वो क्या पुअर नहीं है? तो उसको भी रजिस्टर करना है, क्योंकि वो सारे असंगठित क्षेत्र में है. तो सारे असंगठित क्षेत्र के लिए एक 500 रुपये महीने का हाउस होल्ड लेवल पे मिनिमम इनकम गारंटी की संभावना है. और मैं सरकार को ये नहीं कह रहा कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना भी करते जाइए, स्वच्छ भारत भी करते जाइए, और उज्ज्वला भी करते जाइए, और पीएम किसान भी करते जाइए. नहीं, आपको उन पे खर्च कम करना पड़ेगा, और आपको ये 500 रुपये महीना अगर आप देंगे, लगभग 60% लोग ऐसे जो रूरल एरियाज में हैं, और लगभग 40% लोग जो अर्बन एरियाज में हैं, जो जाहिर है गरीब हैं, जो असंगठित क्षेत्र में हैं, उन पर खर्चा जो आएगा केवल 70,000 करोड़ सालाना का है. एस्टिमेटेड है. मेरा एक पूरा पेपर है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैं आपको बता सकता हूँ. क्रियर का एक वर्किंग पेपर है, वो अप्रैल जून में निकला था, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं. पीएम किसान पे आज 60,000 करोड़ खर्च किया जाता है. आप 10,000 और खर्च कर दीजिए, मगर आप कहीं ज़्यादा मात्रा को कवर कर लीजिएगा. उसका फायदा ये होगा कि ये जो गरीब है, जो माइग्रेंट वर्कर है, ये इंडेटेड है. His savings have contracted massively because of joblessness. Therefore, consumption is falling. Therefore, aggregate demand is falling. Therefore, the economy is contracting. Please try and understand. Please try and understand the macroeconomics of this. I don't know how many of you are macroeconomists. Here I am. I'm not just a labor economist. So, the details I'm not going to speak about. Secondly, आप इन प्रवासी मजदूरों को जो वापस चले गए हैं पलायन करके, उनको वापस बुलाना चाहते हैं ना. इसमें
छोटी इकाइयाँ फिर से चालू हो जाएं, हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स फिर से चालू हो जाएं। बुलाना चाहते हैं ना, वैक्सीन तो चाहिए ही चाहिए, वो तो उसके बिना आएंगे नहीं, वैक्सीन तो आ जाने वाली है। मगर अगर आप एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी शुरू कर दें, जिसको अभी सरकार ने अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट किया है, आत्मनिर्भर 3 में रिजेक्ट किया है, और ये मिनिमम इनकम गारंटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, कैश ट्रांसफर, उसको भी रिजेक्ट किया है। थोड़ा सा पूछिए सरकार से कि क्यों रिजेक्ट किया है, क्योंकि देश और दुनिया के सबसे सारे माने जाने इकोनॉमिस्ट उस मिनिमम इनकम गारंटी की सराहना कर रहे हैं और उसके लिए राय दे रहे थे। और मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें खर्च नहीं के बराबर है। ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी में कह रहा, आप कहेंगे कि अच्छा ये पैसा कहां से आएगा, फिस्कल क्राइसिस है, फिस्कल डेफिसिट तो बहुत भयंकर बढ़ गया है। तो मैं आपको उसका भी जवाब देता हूं। ये होता है अर्थशास्त्री होने का फायदा। आप पैसे बढ़ाए जा रहे हैं मनरेगा पे ना, 60,000 करोड़ पिछले साल एलोकेट किया था बजट में, उसको 40,000 करोड़ बढ़ाया, उसके बाद फिर आत्मनिर्भर थी में 10,000 करोड़ और बढ़ाया। अगर आप एक और सबको मिल भी नहीं रहा है क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। I can give you the data on this. It's all up on the Manrega website. All those who are demanding work in Manrega are not getting work. Huh? All those who are trying to give PM sort of one nation, one ration card, they have not got that ration because even when they went back, they didn't have the ration card. Their names were nowhere there. This is all that comes out of the 4 or 5 other the ground level service that I talked about. So if you do an urban employment guarantee, the result of that would be that it would be substitutive of the government's expenditure on rural employment. Substitutive, क्योंकि आप वर्कर को वापस बुलाएंगे, वहां पर डिमांड कम होगी तो आपको वहां खर्च कम करना पड़ेगा। आपको यहां खर्च करेंगे तो यहां आपके कंस्ट्रक्शन काम बढ़ेगा, हाउसिंग बढ़ेगी, लो कॉस्ट अर्बन हाउसिंग बढ़ेगी। और आखिरी बात, इस बात को कहते हुए मेरा आखिरी सेंटेंस है, हमारे देश में पब्लिक हेल्थ पे we spend only 1.15% of GDP. The national policy on health of 2017 said that we are going to spend 2.5% of GDP. China has been spending 2.5% of GDP for the last 10 to 15 years. तो हम चाइना से कैसे बराबरी करेंगे? विजयदशमी के उद्बोधन में मोहन जी भागवत ने कहा कि हम चाइना से बराबरी ही नहीं करना चाहते, हम तो उनके आगे निकलना चाहते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे एक अर्थशास्त्री होकर के कि हम तो आज 20 साल पीछे हैं चीन से। हर मामले में आपको उसके आंकड़े बता सकता हूं, 20 साल पीछे हैं आज। तो आप बराबरी कैसे करेंगे? बराबरी आप तब कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा स्वास्थ्य पे और खर्च करेंगे। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता होगी। वैसे भी अगर आपको वैक्सीन देश भर में देशव्यापी रूप में 60% 70% जनता को वैक्सीन प्राप्त करवानी है, और हेल्थ और एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर माफ करिएगा, और ICDS पे एक्सपेंडिचर कम होता गया है पिछले 5-6 सालों में, क्योंकि बाकी चीजों पे बढ़ा है। MDM पे, मिड डे मील पे कम होता चला गया है। बात समझिए। तो अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ 2019 बिफोर द पैंडेमिक सर is telling us now, you've just seen the front page news. How many of you have seen the National Family Health Survey data about malnutrition? There's been an increase in stunting and an underweight in 13 of the 22 states for which data has been released. There are, for the northern belt states, it's not. How do I explain this? And this is increase between when and when? Between 2015 and 2019. So don't say this was happening before 2014. This has happened between 2015 and 2019. It's happening because I just told you about what happened to poverty, what happened to joblessness. You understand? Savings as a proportion of GDP have collapsed from 24% of GDP in 2012 to 17% of GDP in 2019. How? Why? Because people are dis-saving. Consumption अपना maintain तब कर रहे हैं लोग क्योंकि dis-save कर रहे हैं।
तो ज़रूरी ये है कि लोग अब कम से कम हेल्थ पे तो ना खर्च करें, मजबूर होकर के, तो सरकार को हेल्थ पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मेहरोत्रा जी, बहुत ही अभ्यासपूर्ण और एप्ट मार्गदर्शन हमें मिला है, इसका ज़रूर हम उपयोग करेंगे। अभी मैं हमारे एसएसएफ के डायरेक्टर श्री अविनाश मुल्ले जी को इनवाइट करता हूं कि जो वोट ऑफ थैंक्स देंगे। वोट ऑफ थैंक्स के बाद भोजन की व्यवस्था की गई है। मेरे पास कुछ डिमांड आई थी कि डिस्कशन के लिए कुछ समय देना चाहिए, मगर समय के कंस्ट्रेंट के कारण अभी डिस्कशन नहीं हो पाया। मगर भोजन के समय जो भी कुछ शंकाएं होगी वो उसके बारे में हमारे पैनलिस्ट अपने साथ खाना खाने वाले हैं, तो उनके साथ चर्चा करके अपनी जो शंकाएं हैं आशंकाएं हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी मुल्ले जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद हरि जी। I propose vote of thanks on the occasion of discussion on report prepared by SSF in respect of migrant labor status during COVID-19 pandemic. Because the rest On we have behalf of SSF, I extend my hearty gratitude to our honorable chief guest, Professor Santosh Mehrotra, and respected speakers, Shri K. Badrinath, Professor Dipendranath Das, for gracing the event and precisely sharing their views on the subject matter. I am thankful for them coming here to attend the panel discussions. I also express my thanks for Dr. Chandrakant Rawal for accepting our request and extending his cooperation to work as chief editor of the report and for his introducing remarks on the contents of the report. I am also thankful for Shri Abhishek Tandon, Deputy Director Research, ICSSR, for his elaborate welcome address. SSF also extends its sincere thanks to all authors from different strata who contributed to make this report rich by giving their researched articles. Few of them, such as Shri Sanjay Paswan, ex-Union Minister and sitting MLC, then Shri Ravi Prakash Arora, retired IAS officer, Advocate Shri Vinod Dubakar, practicing Supreme Court advocate and additional Advocate General UP government, for accepting our invitation and grace the occasion with their presence. I am thankful for them. Then SSF is very much thankful to ICSSR management and particularly Shri V.K. Malhotra, Member Secretary. Without their gracious support, it wouldn't be possible to organize event. ICSSR has also accepted our report for publication. We hope the same will be available in public domain as book very soon. I once again thank ICSSR for rendering us with all logistic support towards organizing this event, all the plenary speaker and august audience for their presence. Once again, thank all for cordial cooperation. Thank you. भोजन की व्यवस्था चिंतन गेस्ट हाउस में वो जो डाइनिंग हॉल है वहाँ पे की गई है। आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ भोजन का आस्वाद लें। धन्यवाद। मैं चाहता है I hope I did not hurt any feeling. Critical very valuable contribution. धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, मस्त जी जी बहुत धन्यवाद। That's why basically I told that we are very open. जी जी we would like to be an instrument for this process. जी जी
मैं जेल से थैंकफुली रिटायर कर गया। मैं लखनवी हूँ। मेरे पिताजी यूपी बॉर्डर के आईआर थे। मेरा बचपन डॉक्टर बलवीन जी का। जी 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 मैं 2000 अच्छा किया। AQI का फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही और कर फिर जो है स्टेशन को पास कर हाँ हाँ बहुत सही किया। अब ये फोन में जी जरूर जरूर। मेरा नंबर है 98681 कर लीजिए। नाइन 681 49193। जी जी कर दीजिए। लास्ट में 44 है। हाँ हाँ ठीक है। जल्दी से काश शुरू हो। जी जी बिल्कुल। कर दिया। एक चीज़ डिसाइड करते हैं एरोप्लेन मोड में कर दिया था। कर लीजिए। मैं सेव कर लूँगा। हाँ हाँ लास्ट में 44 आएगा।